ایڈمنسٹریٹر کراچی نے بلدہ عظمیٰ کا نئے مالی سال کا 31 ارب 89 کروڑ روپے سے زائد کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا۔ کل آمدن 31 ارب 91 کروڑ روپے ہوگی۔ مجموعی اخراجات 31 ارب 89 کروڑ روپے ہوں گے۔ بجٹ میں 16.128 ملین بچت بھی شامل۔ شہری کار کے ترقیاتی منصوبے کے لیے 2 ارب 72 کروڑ رکھے گئے۔ پینشن فنڈ، متفرق اخراجات اور بیل آؤٹ پیکج کے لیے 83 ملین روپے مختص۔ اسٹیبلشمنٹ اخراجات 21 ارب 52 کروڑ روپے رکھے گئے۔ مینٹیننس کی مد میں 27 کروڑ 13 لاکھ روپے کا تخمینہ۔ میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز کے لیے 5756.250 ملین روپے رکھے گئے۔ محکمہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کے لیے 1184.423 ملین روپے کا تخمینہ۔ تفریحی ٹیکس کی آمدنی کے لیے منتقلی 2 لاکھ ملین روپے مختص۔ کلچر، اسپورٹس اینڈ ریکریشن کے لیے 973.452 ملین روپے بجٹ میں رکھے گئے۔ ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ بجٹ میں کل آمدن 31 ارب 91 کروڑ 20 لاکھ سے زائد، جبکہ مجموعی اخراجات 31 ارب 89 کروڑ 59 لاکھ سے زائد ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کا تخمینہ 2 ارب 72 کروڑ اور ضلع سالانہ ترقیاتی اخراجات 5 ارب 1 لاکھ روپے ہے۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ بیٹر کوارڈینیشن کا فائدہ تھا جو کہ شہر میں ہوا، اور میں امید کروں گا اور میرا ٹارگٹ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کوئی بھی ہو، میئر کوئی بھی ہو، یہ کوارڈینیٹڈ انداز میں اس شہر کو اون کرتے ہوئے، ہمارا شہر کہتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ شہریوں کو ہم ریلیف دے پائیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے بتایا کہ بجٹ میں پینشن فنڈ، متفرق اخراجات اور بیل آؤٹ پیکج کے لیے 8 ارب 37 کروڑ 74 لاکھ سے زائد مختص ہیں۔ میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز کے لیے 5 ارب 75 کروڑ 62 لاکھ سے زائد اور میونسپل سروسز کے لیے 3 ارب 94 کروڑ 30 لاکھ سے زائد رقم مختص کی گئی ہے۔ ہم نے اس سال کراچی بھر میں اوپن پبلک سپیسز پر کام کیا، پارکوں پر کام کیا، پارکوں کی بحالی کے اوپر کام کیا، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل سے اگر میں سٹارٹ کروں کیونکہ سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ضلع اس کو کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم نے 100 پارکس کی تزئین و آرائش کرنے کا فیصلہ کیا۔ پروجیکٹ 100 کے نام سے کام سٹارٹ ہوا، ڈی ایم سی نے کیا۔ مجھے آپ کو خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ ان 6 مہینے کے عرصے میں ہم نے 40 پارکوں کو بحال کیا ہے، اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی بڑی بات نہیں تھی ان کو بحال کرنے میں۔ میں ماضی کی کے ایم سی کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اور موجودہ کے ایم سی کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ موسمی اثرات سے نمٹنے کے لیے 1.5 لاکھ پودے وہاں پر پلانٹ کیے گئے، ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے، اور آج آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مختلف منظر کڈنی ہل پیش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہل پارک ہے۔ بجٹ میں محکمہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کے لیے 1 ارب 18 کروڑ 44 لاکھ اور کلچر، اسپورٹس اینڈ ریکریشن کی خاطر 97 کروڑ 34 لاکھ سے زائد مختص ہیں۔ بجٹ میں آئی ٹی ٹی کی مد میں 7 کروڑ 57 لاکھ، جبکہ ٹرمینلز اور ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کے لیے 7 کروڑ 12 لاکھ سے زائد روپے رکھے گئے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا کہ ریونیو کے تخمینے میں حکومت سے گرانٹ بشمول او زیڈ ٹی کا 11 ارب 30 کروڑ روپے ہے۔ عوامی مسائل کی بات کریں۔ بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک جا پہنچا۔ مستثنی علاقوں میں بھی دن میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لیاقت آباد، نیو کراچی، نارتھ کراچی اور بلدیہ ٹاؤن میں بجلی کی بندش سے شہری بحال۔ نارتھ ناظم آباد، بلدیہ ٹاؤن، کورنگی، لانڈی، ملیر، گلشن معمار، گلشن اقبال اور گلستان جوہر بھی متاثر۔ ترجمان کے الیکٹرک نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی تردید کر دی۔ کہا کہ فیول کی قلت ہے، گرمی کی شدت میں اضافے سے بجلی کی طلب بڑھ گئی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت سے رابطے میں ہیں۔ شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ، اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 15 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ شہری سخت گرمی میں دوہری اذیت سے دوچار۔ ترجمان کے الیکٹرک اویس منشی نے شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی تردید کر دی۔ کہا کہ شہر میں 2700 میگا واٹ بجلی کی فراہمی جاری ہے۔ گرمی کی شدت کے باعث طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت 450 سے 500 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ نیشنل گرڈ سے اس وقت 1000 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث ایک اوسطاً شارٹ فال جو تقریباً 250 سے 350 میگا واٹ کا نظر آتا تھا، وہ اس وقت 450 سے 500 میگا واٹ تک جا پہنچا ہے۔
اس بڑھتے ہوئے ڈیمانڈ اور سپلائی کے گیپ کی وجہ سے اضافی لوڈ شیڈ اس طرح سے کرنا پڑ رہا ہے کہ جو علاقے پہلے مستثنی تھے وہاں پر بھی عارضی طور پر ہمیں اضافی لوڈ شیڈ کرنا پڑا ہے۔ اویس منشی کے مطابق اس وقت ایندھن کی قلت اور عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کے سبب پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ بقایا جات کی ادائیگیوں کے باعث بھی فیول کی خریداری میں مسائل درپیش ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومت سے اندیابی کے لیے رابطے میں ہیں۔ حبیب خان، سٹی 21۔ شہر میں بڑھتی لوڈ شیڈنگ سے تاجر برادری بھی پریشان ہے۔ صدر کراچی چیمبر آف کامرس ادریس میمن کا کہنا ہے کہ حکومت نے کاروبار جلد بند کرنے کا احکامات دیے اور یقین دہانی کروائی گئی کہ دن بھر بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری رہے گی، مگر شہر میں اب بھی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے حبیب خان سے جو اس وقت ادریس میمن کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی حبیب، بتائے گا۔ دیکھیں، کراچی میں اس وقت لوڈ شیڈنگ کی ابتر صورتحال ہے، رہائشی علاقے ہوں یا پھر اس وقت تاجر برادری، تمام تر لوگ جو ہیں وہ اس وقت پریشانی کا شکار ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے وہ شیڈول کا تو کے الیکٹرک کی جانب سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ غیر اعلانیہ طور پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ایک طرف حکومت کی جانب سے مارکیٹس رات 9 بجے بند کرانے پر جو ہے وہ عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ تاجروں کو اس وقت کیا پریشانی ہے، بات کرنے کے لیے صدر کراچی چیمبر آف کامرس محمد ادریس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ادریس صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ کی ابتر صورتحال ہے، دن میں کاروباری وقتوں میں بھی لائٹ نہیں ہے، تاجر کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ مارکیٹ بھی جلدی بند کروا دی جاتی ہے؟ لیکن جو مارکیٹ کے حوالے سے تو جب ہماری منسٹر صاحب سے جام اکرام دھاریجو صاحب، مرتضی وہاب صاحب، کمشنر کراچی سے میٹنگ ہوئی تو اس میں تاجروں نے یہی کہا تھا کہ اگر دن بھر ان انٹرپٹڈ بجلی سپلائی کر دی جائے تو وہ شام کو رضاکارانہ طور پر اپنی مارکیٹیں جلدی بند کر دیں گے۔ چونکہ کراچی کا جو کلچر ہے وہ لیٹ نائٹ کا اور لیٹ شاپنگ کا کلچر ہے، یہ ساری باتیں ہم نے گوش گزار کی تھی اور اس وقت یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ دن بھر بجلی کی جو جانے کا سلسلہ ہے وہ رک جائے گا، مگر وہ اب تک دیکھنے میں نہیں آ رہا، اور بلکہ آج تو کراچی کے تمام رہائشی اور کمرشل علاقوں میں صبح سے ہر آدھے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے بجلی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، اور جو بجلی کی کاسٹ دن بہ دن بڑھائی چلے جا رہے ہیں۔ نیپرا نے آج پھر جو ہے اس میں ملک بھر میں اضافہ کر دیا اور آئندہ آنے والے دنوں میں KE نے تقریباً 11.5 روپے بڑھانے کی جو درخواست دی ہے، تو آپ سوچیں کہ بجلی کے پر یونٹ کی قیمت کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں عام لوگ بھی بجلی کے بل بھر پائیں گے اور جو ہے انڈسٹری بھی سروائیو کرے گی۔ تو یہ بہت مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے جو اس وقت پاکستان بڑے سنگین مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ تو حکومت کو آلٹرنیٹ پر سوچنا ہوگا، اپنے قدرتی جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لانا پڑے گا، ہائیڈل انرجی پر جانا پڑے گا، سولر پہ جانا پڑے گا اور ونڈ انرجی پہ زیادہ سے زیادہ کام کرنا پڑے گا، تاکہ آنے والے دنوں میں ہم جو حالات ابھی دیکھ رہے ہیں ان کی پیش بندی کی جا سکے اور اس کو ختم کیا جا سکے۔ بالکل، محمد ادریس صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت حکومت کو جو ہے وہ بر وقت فیصلے کرنے ہوں گے اور جو سولر پلانٹ ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو قدرتی ذرائع ہیں جس سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے ان تمام تر ذریعوں پر کام کرتے ہوئے کراچی میں بالخصوص جو ہے وہ نہ صرف رہائشی مارکیٹس میں بجلی کی سپلائی کو جو ہے وہ بہتر۔ ٹھیک ہے حبیب، آپ کا بہت شکریہ۔ شنگھائی الیکٹرکا کے الیکٹرک کے شیئرز کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار۔ شنگھائی الیکٹرک کی 66.40% حصص خریدنے کی پیشکش۔ حصص کی مالیت 4 ارب 63 کروڑ 58 لاکھ ہوگی۔ مزید جانیں گے اشرف خان سے۔ جی اشرف، بتائے گا۔ جی، شنگھائی الیکٹرک کی حالیہ پیشکش کے الیکٹرک کے سعودی اور کویتی سرمایہ کاری کے دورہ پاکستان کے بعد سامنے آئی ہے۔ شنگھائی الیکٹرک نے الیکٹرک کے 4 ارب 63 کروڑ 98 لاکھ شیئر کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور اپنے آفر مینیجر کے ذریعے ایک بار پھر سے شنگھائی الیکٹرک نے الیکٹرک کے شیئر کی خریداری کی آفر دے دی ہے۔ شنگھائی الیکٹرک کی جانب سے نئی آفر کو 27 ستمبر 2022 تک مکمل کرنے کا وقت بھی دیا گیا ہے اور یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شنگھائی الیکٹرک نے الیکٹرک شیئر کی خریداری کی نئی بار پیشکش کی ہے اور جو پہلی آفر جو کی گئی تھی شنگھائی الیکٹرک کی جانب 6 سال پہلے اکتوبر 2016 میں کی گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ شہر میں گیس بحران سے سب سے ہی پریشان ہے۔ گھریلو صارفین کی طرح کمرشل صارفین بھی مشکلات سے دوچار ہیں اور سلنڈر کا استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شہر قائد میں گیس کا سنگین بحران، گھریلو، صنعتی اور کمرشل صارفین سب ہی پریشان۔ چائے ناشتے کے ہوٹل پر کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ گیس نہ ہونے سے سلنڈرز کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ سلنڈرز کے استعمال کی وجہ سے کاروباری اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں جبکہ گیس کے بل بھی پورے آ رہے ہیں۔
इधर कोई आते रात को आधे घंटा एक गन आती है, वो भी कभी कभार आती है, वरना रोज गैस नहीं आती। हम मुकम्मल सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बहुत ही महंगा पड़ रहा है, हम क्या बताएं, बहुत महंगा। काम चला रहे हैं, कारोबार थोड़ी बंद कर सकते हैं साहब। बहुत सारा खर्चा बहुत बड़ा हुआ है। पहले ठंड भी वही मसला था, अभी गर्मी में वही मसला है गैस का। होटल मालिकान का कहना है कि सिलेंडर के इस्तेमाल से लागत बढ़ने के बाइस कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। हुकूमत और सुई गैस कंपनी गैस बुहरान का हल तलाश करें। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। आमिर लियाकत की लाश की मुआयना रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सरे में कोई भी हड्डी नहीं टूटी, तशद्दुद और चोट का भी कोई निशान नज़र नहीं आया। सीनियर एमएलओ ने कत्ल का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आपको बताएं, आमिर लियाकत की लाश की मुआयना रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सरे में कोई भी हड्डी नहीं टूटी। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे समर अब्बास से। जी समर, आगाह कीजिएगा, इसका पोस्टमार्टम पर क्या असर पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल, देखें इस हवाले से जो हमें 24 न्यूज़ को रिपोर्ट मौसूल हुई है, इसमें लाश के एक्सरे में कोई भी हड्डी जो है वो टूटी हुई नहीं नजर आई है। इस हवाले से एमएलओ है सीनियर डॉक्टर सोहेल, उनका कहना है कि आमिर लियाकत की लाश से जो नाक से पीले और लाल रंग की झाग निकल रही थी, ये लाश का अमूमन सर जब पीछे हो जाए तो उस वक्त ये मैदे में मौजूद जो चीजें होती है वो नाक और मुंह से बाहर आती हैं। रिपोर्ट देखकर अंदाजा होता है कि वाकया कत्ल का नहीं है, जबकि लाश के मुआयने में कोई तशद्दुद और चोट का निशान भी नजर नहीं आया और कमर में दोनों तरफ 2 धब्बे नजर आए हैं। इसके अलावा जो है कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई जिससे ये जाहिर हो कि ये कत्ल की वारदात है। इस हवाले से जो रिपोर्ट मौसूल हुई है उस पर मजीद भी जो है तफ्तीश की जा रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि रिपोर्ट को मद्देनजर रखकर जो भी फैसला किया जाएगा वो फैसला काबिल कबूल होगा। जी ठीक है समर, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम कराने से मुतालिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत मजिस्ट्रेट के रूबरू दरख्वास्त देने वाला शहरी गैर हाजिर रहा। आमिर लियाकत की साबिक अहलिया बुशरा इकबाल का समाअत के बाद कहना था कि अब्दुल अहद इतने एक्टिव वकील हैं तो समझे कि अदालत का वक्त इस तरह ज़ाया ना किया करें। कोई चला जाता है और उसके घर वालों को इस तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। अफसोस, इंसानियत हमारे अंदर से ख़त्म हो गई है। कंसर्न शो कर रहे थे अब्दुल अहद साहब जो पिटिशनर हैं इस बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए, अगर वो इतने ही कंसर्न थे तो उनको यहाँ होना चाहिए था। उस दिन भी जब हम ऑर्डर की जवाब के लिए गए थे तो भी वो 9 से 11 बजे तक हम कोर्ट में थे, वो नहीं आए थे और उनका कंसर्न समझ में आ रहा है कि क्या है। पर अफसोस है कि कोई चला जाता है दुनिया से, उसके घर वालों को इस तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। आई डोंट नो कि उनका क्या इसमें पीछे क्या चीज़ है, आई डोंट नो क्या कौन सी इंटेंशन उनकी क्या है। पर अफसोस की बात है कि इंसानियत हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है। प्लस ये कि अगर इतना कंसर्न था और इतने एक्टिवली वो कह रहे थे सब यूट्यूबर्स को, मीडिया को और इंटरव्यूज़ दे रही, तो यहाँ एक्टिव होके क्यों नहीं पेश हुए। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स ऑडिट की वजह से बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से दूर दराज से अशिया खुरनोश की खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह कराची में भी यूटिलिटी स्टोर्स आज बंद हैं और बुनियादी तौर पर जो ज़राए उनका बताना यह है कि ऑडिट की वजह से कराची के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो बंद हैं और इस वजह से जो शहरी हैं जो कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की ख़रीदारी के लिए आते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं और क्या चीज़ें लेने आए थे आप? यहाँ तो घी लेने और तेल लेने और चीनी लेने के लिए। हम आए हैं इब्राहिम हैदरी से। इधर सस्ती चीज़ मिल रही थी मगर आज बंद पड़ा हुआ है। अभी कहाँ जाएं गरीब आदमी। हमारे यहाँ तो बहुत महंगा ही है, 100 रुपये किलो चीनी चल रही है, 650 रुपये किलो घी चल रहा है। अभी इधर सस्ता मिल रहा था, आज ये बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं कब खोलेंगे। ये जो शहरी थे इनका ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जब आते हैं तो उनको अशिया जो है वो सस्ती मिलती है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद हैं और ज़राए का बताना यह है कि ये क्वार्टरली जो है वो क्लोजिंग है, जिसमें जो है वो स्टॉक टेकिंग भी देखने में आ रही है और ऑडिट की वजह से ये स्टोर्स जो है वो बंद हैं। ये स्टोर जो है वो 2 दिन यानी कि आज और कल बंद रहेंगे और ज़राए का बताना है कि तमाम यूटिलिटी स्टोर जो है वो। ठीक है बसीम, आपका बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान अपैरल फोरम चेयरमैन जावेद बुलवानी ने कहा कि 30 जून 2022 को रीजनल ममालिक के बराबर टैरिफ की सहूलत ख़त्म होने जा रही है। अगर ये सहूलत जारी ना रही तो बरामदात करना मुश्किल तरीन हो जाएगा। हुकूमत से मुतालबा है कि बरामदी सनतों के लिए रीजनल ममालिक की सहूलत के टैरिफ को जारी रखा जाए। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताएगा। जून 2022 को जो रीजनल कम्पिटिटिव जो टैरिफ है वो ख़त्म होने जा रहा है और यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी कंसर्न शो कर रहे हैं। अगर ये कंटिन्यू नहीं रहता है तो क्या एक्सपोर्ट हो सकेगी? हम जानते हैं बिजनेसमैन ग्रुप के नायब चेयरमैन जावेद बुलवानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो बढ़ी है इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कि टारगेट से ज़्यादा अचीव हो गया। हम गवर्नमेंट से हमेशा कहते थे कि आप एक काम करें, आप यूटिलिटी का टैरिफ जो है वो फिक्स कर दें पूरे साल के लिए, ताकि हम अपना माल बेच सकें, हम कोस्टिंग कर सकें। तो पीटीआई गवर्नमेंट की समझ में आई ये बात और उन्होंने बोला ये आइडिया बहुत अच्छा है, आप टैरिफ फिक्स कर देते हैं। हमने ये कहा आप फिक्स भी करें, उसको रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज़ जो हैं उनको सामने रख के उनके नियर अबाउट फिक्स करें। उन्होंने उनसे ज़्यादा फिक्स किए, हालांकि उसमें कई कंट्रियां जो हैं उनके टैरिफ हमसे कम थे। अब टैरिफ इन्होंने फिक्स किए, उस पर एक्सपोर्टर जो है वो बायर के साथ बात कर सकता है, को अपने प्राइस दे सकता है। अब ये जून 30 से ख़त्म हो रहा है। अब इसके बाद जो आगे का इन्होंने नहीं निकाला, लगे अचानक हुकूमत चेंज हुई, पिछली गवर्नमेंट से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम कंटिन्यू करेंगे। मैं समझता हूँ इन्होंने भी, मिफ्ता इस्माइल ने भी कहा कि हम कंटिन्यू करेंगे। अगर ये कंटिन्यू नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में रिसेशन भी है। पाकिस्तान के जितने बड़े एक्सपोर्टर्स हैं सब गारमेंट वाले ही हैं। टॉप 10 के एक्सपोर्टर आप देख लें तो सब गारमेंट वाले ही हैं। और गारमेंट वाला कैसे माल बेचेगा? होम टेक्सटाइल वाला ये माल नहीं बेच सकता। तो गवर्नमेंट को सीरियसली देखना चाहिए। इसके अलावा वरना पाकिस्तान ने जो अभी अचीव किया है, अल्लाह करे कि ये मेंटेन रहे। जी, जैसे कि आपने सुना और यहाँ पे हुकूमत से मुतालबा किया कि रीजनल टैरिफ जो उसके कम्पिटिटिव टैरिफ का जो रखा गया है 30 जून के बाद उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हुकूमत ने इसको कंटिन्यू नहीं किया तो साफ साफ जावेद बुलवानी ने कह दिया है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ऑर्डर्स नहीं मिल सकेंगे, वो बरामदात। ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में घरेलू सार्फिन के लिए गैस नायाब है, मगर शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 के मेन रोड के गटरों में गैस लाइन से लीकेज होने लगी है। सुबह से 2 बार गटरों में आग लग चुकी है। इलाके में हर तरफ गैस की बदबू फैल गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, बताएगा क्या तफसीलात हैं? गुज़िश्ता तवील अरसे से शहर क़ायद के बासियों को गैस से महरूम किया जा रहा है, लेकिन शाह फैसल 3 नंबर के बासी जो हैं वो उनको गैस खासी वाफिर मिकदार में मिल रही है। और वो कैसे, कैमरामैन फरहान से कहूँगी ज़रा ये मनाजर दिखाएंगे। जो गटर है इसके अंदर से गैस लीक है। इलाका मंत्री बता रहे हैं कि सुबह यहाँ पर आग भी लग चुकी है। सिर्फ यही गटर नहीं बल्कि लेफ्ट साइड पर इससे थोड़ा सा दूर जो गटर है वहाँ से भी आग निकल चुकी है। और मकीन ये बता रहे हैं कि ये पूरी गैस पाइपलाइन जो नीचे है वो लीक है। यहाँ पर वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन मकीनों को नहीं मिलती है। लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या मंजर है, गैस का क्या मसला है यहाँ? पहले गटर लाइन डाली थी तो उसकी वजह से ना ये शावर ने लीक कर दिया। ये 2-4 जगह से लीक है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। 1-1.5 साल हो गया लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। अभी कंप्लेनें की है, अब ज़्यादा गैस लीक हो रही है तो कंप्लेनें की, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। होटल के जो अफराद हैं इनका बताना है कि स्विस सदन गैस हुकाम को सुबह भी आगाह किया है कि यहाँ इस गटर से गैस जो है बहुत ज़्यादा लीक हो रही है। इस वक्त मेरा यहाँ खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत शदीद स्मेल है यहाँ पर, लेकिन कोई आकर इसका मुआयना करने को तैयार नहीं है। और काफ़ी अरसे से ये मसला है। बता रहे हैं कि इलाके से गैस गायब हो जाती है, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन इस गटर के अंदर वाफिर मिकदार में मौजूद है। अब कोई यहाँ आकर तो पकाने से रहा। स्विस सदन गैस हुकाम को देखना होगा, कोई भी बड़ा सानहा रूनुमा होने से कबल इसका सद्देबाब करना होगा, वरना आला हुकाम इस चीज़ का नोटिस लें, क्योंकि अगर कोई बड़ा वाक़ा रूनुमा के बाद आने का। आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अफसरान ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्सा वहाब के इस दावे की तस्दीक कर दी है कि हमेशा बारिशों में मुतासर होने वाली शेरशाह सूरी रोड पर अब बारिश का पानी जमा नहीं होगा। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे रिजवान अहमद से, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हैं। जी रिजवान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मानसून बारिशों के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का दावा है कि तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं और इस सिलसिले में उन्होंने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर माजी में होने वाली जो परेशानियां थीं जो कि बारिश के पानी से जन्म लेती हैं उसके बारे में भी तफसीलन आगाह किया। उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नागन चौरंगी हो, 5 स्टार चौरंगी हो या KDA चौरंगी हो, माजी में ये बरसात में डूब जाती थी, लेकिन उनका दावा है कि इस मरतबा ये बरसात में नहीं डूबेंगी। DMC सेंट्रल के अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, नासिर खान, उनसे बात करते हैं। नासिर साहब फरमाइएगा, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से ये दावा किया गया है, आप ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्या तैयारियां हैं रेन एमरजेंसी के हवाले से और क्या उनका ये दावा दुरुस्त है कि ये तीनों चौरंगियां इस मरतबा बरसात से मुतासिर नहीं होंगी? इंशाअल्लाह जैसे कि आपने देखा था लास्ट टाइम जो बारिश हुई है उसके अंदर भी ये तीनों जगह पर पानी नहीं था, ट्रैफिक अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा। लियाकताबाद, नाज़माबाद, अंडरपास जो आपने देखा, वाटर सीवरेज बोर्ड वाले तमाम महकमे इस वक्त साथ थे और अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कहीं भी कोई पिछली बारिश में प्रॉब्लम नहीं आई। इस मरतबा भी हमने उसी तरीके से कैंप और उसी तरीके से सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं। जैसा आपने नागन चौरंगी को देखा है, क्रॉस किया है बहुत नाले के अंदर से, इसी तरह KDA में काम किया है, काम भी इंजीनियर डिपार्टमेंट ने अपने तमाम काम किए हैं और उसके कुछ फ़ायदे नज़र भी आए। अच्छा ये बताइएगा, रेस्क्यू के हवाले से आप लोगों का क्या तैयारी है और क्या कंटीजेंसी प्लान सामने आएगा? देखिए इसके अंदर हमने हमारा डिपार्टमेंट, रेस्क्यू डिपार्टमेंट मुख्तलिफ जगहों पे अपनी ड्यूटियाँ से अंजाम देते हैं, जहाँ गाड़ियाँ फंस जाएँ या बंद हो जाएँ या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, वो उनको आगे सारा कुछ कर रहे होते हैं। के लिए स्वीपर हमने मुख्तलिफ जगहों पे पॉइंट बनाए हुए हैं, KDA पे, पेट्रोल पम्प पे, लियाकताबाद 10 नंबर पे, नागन पे, गुलबर्ग में, सारी जगहों पे हमने पॉइंट बनाए हुए हैं। जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम आएगी, चौकिंग पॉइंट आएंगे, वहाँ हमारे लोग होंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना यह है कि इंतजामात और तैयारियां तमाम तर मुकम्मल हैं और उम्मीद है कि ये मानसून सीज़न शहरियों के लिए। रिजवान आपका बहुत शुक्रिया। कराची में घरेलू झगड़ों से तंग खातून ने अपनी ही बच्ची पर गुस्सा निकाल दिया। पाक कॉलोनी में मां का अपनी 4 साला बच्ची पर तशद्दुद, बच्ची के जिस्म पर तेज धार ब्लेड चलाए जाने का इंकशाफ। बच्ची की मां ने एतराफ़ किया कि घरेलू नाचाकियों से तंग आकर मैंने अपनी बच्ची पर तशद्दुद किया। इससे कबल अपनी जेठानी और उसकी बेटी पर भी तशद्दुद कर चुकी हूँ। जेठ है ना, वो आए पुलिस थाने से, पुलिस को लेकर आए सारे, फिर हमने थाने में गए के हमने फाइल वाइल सारी हमने वो करी, जैसे उनकी सारी हमने ना शिकायतें बोली कि देखो हमारे को ऐसे से तंग कर रहे हैं। ईद उल अज़हा में चंद ही रोज़ बाकी हैं, जबकि मंडी में ख़रीदारी के लिए गाहक ना होने के बराबर हैं। व्यापारियों का कहना है कि वहीं गाहक मंडी का जायज़ा लेने तो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन ख़रीदारी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा इस वक्त मंडी में एक व्यापारी के साथ मौजूद हैं, उनका क्या कहना है आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ईद उल अज़हा में अब तकरीबन 2 हफ्ते भी बाकी नहीं रहे हैं, लेकिन मंडी में जो ख़रीदार हैं वो इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देते, क्योंकि कराची में अगर दिन की बात की जाए तो गर्मी शायद ज़्यादा होती है, इस वजह से जो ख़रीदार हैं वो कम आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर ओवरऑल सूरत हाल की बात की जाए तो गाहक या ख़रीदो फरोख्त उतनी ज़्यादा जो गहमा गहमी दिखाई देती थी गुज़श्ता सालों में वो नज़र नहीं आ रही है। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कितने जानवर लाए थे, अब तक कितनी बेच चुके हैं, किस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं? भाई 32 लेके आए थे, उसमें एक गया थे 8.5 लाख रुपए का बचा, वो बड़ा था, काला था, सही है। अभी हमने किसी के 7 लाख रुपए मांग रहे, किसी के 6 लाख मांग रहे, किसी के 3 लाख रुपए मांग रहे। जो हमारे को बारे में आएगा, हमारे को रोजी मिल जाएंगी तो हम दे देंगे। हम भी बच्चे घर वाले छोड़ के इधर से आए हैं कमाने के लिए, अगर हमारे को रोजी नहीं मिलेंगी तो हम कैसे दे देंगे? अगर आ रहे हैं वो बंदे बोल के जाते हैं, बोलते हैं यार इतने बड़े जानवर महंगा दे रहे, ये कर रहे, लेकिन वो देख रहे नहीं तो खर्चा महंगा हुआ है। पहला 1300 रुपये की बोरी लेके आते हैं, अभी 2600 रुपये की बोरी लेके आ रहे हैं। पहला ये डब्बा मिलता था 500 रुपये का कैन मिलता था, अभी 1000 रुपये का कैन पानी का मिल रहा है। बिल्कुल, अभी मंडी में तकरीबन 3 लाख के करीब जानवर आ चुके हैं, मजीद जो है कहा जा रहा है कि 4 लाख के करीब जानवर आने हैं। लेकिन जो व्यापारी हैं उनका ये शिकवा है कि महंगाई के साथ साथ जो जानवरों की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, लेकिन ख़रीदार शायद उनकी क़ुव्वत फ़रोख्त कम हो गई है और महंगाई की वजह से वो जो जानवर हैं वो ख़रीदते हुए नहीं दिखाई देते, बल्कि सिर्फ विंडो शॉपिंग करते हुए जो है यहाँ पर नज़र आते हैं और घूमते हैं। और उसकी वजह से वो भी खासे परेशान हैं व्यापारी कि अभी तक जानवर काफ़ी सारे मौजूद हैं, जो फ़रोख्त का सिलसिला है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी। ठीक है सऊद, आपका बहुत शुक्रिया।
सुपर हाईवे पर कायम मवेशी मंडी में एक ऑस्ट्रेलियन बैल तवज्जो का मरकज बन गया है। बहावलपुर से लाए गए 8 दांत के इस बैल की कीमत 25 लाख रुपए रखी गई है। हमारे नुमाइंदे वाजिद असवानी इस वक्त वहां मौजूद हैं और उस बैल के व्यापारी से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में, जहाँ पे ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है और अब तक एक इतला के मुताबिक 3 लाख के करीब जो हैं वो जानवर आ चुके हैं और 1.5 से 2 लाख जानवर अभी भी उनकी आमद मुतवक्किल है। शाम में यहाँ पे कम रौनक होती है और असल में और रौनक मिलने लगता है मगरिब के बाद, जहाँ बच्चे अपने फैमिलीज़ के साथ ख़वातीन और मर्द आते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक यहाँ पे जानवर आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन बैल यहाँ पर एक मौजूद है जिसकी कीमत इन्होंने बताई है 25 लाख के करीब। पिछले साल भी जानवर लेके आए थे लेकिन इसके 15 लाख लगे थे और उसके बाद उन्होंने इसको फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया था। एक बार फिर ये जानवर लेके आए और 25 लाख इन्होंने इसकी डिमांड लगाई है। अभी तक इसकी कोई इनके पास अच्छी डिमांड आई नहीं है। बहावलपुर से आए हैं, बहावलपुर से जो जानवर लाए हैं ये साहब, हम इनसे बात करते हैं। आप इधर आइएगा, क्या नाम है आपका? शुएब। आप कितने जानवर लेके आए? 18 जानवर लेके आए हैं। अच्छा, कौन कौन सी कितनी कीमत है इसकी? सर इस ऑस्ट्रेलियन की 25 लाख पर डिमांड कर रहे हैं। दूसरे जानवर हमारे पास ब्राह्मण भी है और दूसरा जो है हमारे पास चोलिस्तानी नुकरा भी है, अबलख भी हैं, पिंक नोज़ में है। सर महंगा जानवर हमारा ये है, ठीक है, जिसकी हम 25 लाख डिमांड कर रहे हैं। सर इसकी कितनी डिमांड लग चुकी है अब तक? अभी तक इसकी 16 तक लगी है, हमने नहीं दिया। ठीक है, कितने में डन करेंगे? सर देखो जितना में हमें रोज़ी बच रही होगी तो इंशाल्लाह दे देंगे हम। ठीक है, आपने शुएब की बात सुनी। ये इस जो फॉर्म है उसके ये इंचार्ज हैं एक तरह से। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जानवर ला के रखे हैं, काफ़ी हैवी बैल यहाँ पे मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियन बैल के अलावा उन्होंने बहुत सारे बैल की भी बातें बताई यहाँ पे कितनी कीमत है, लेकिन सबसे महंगा जो है ये ऑस्ट्रेलियन बैल है जिसकी 25 लाख उन्होंने कीमत बताई है। उन्होंने कहा इसकी अगर अच्छी ऑफर लग गई तो मैं इसको फ़रोख्त। वाजिद आपका बहुत शुक्रिया। कराची के मवेशी मंडी में 2.5 लाख से ज़्यादा जानवर पहुंच गए हैं। सर्द गर्मी के बाद खरीदारी का रुझान कम है। मंडी में रॉकेट की एंट्री हो गई। व्यापारी तो बेचना चाहते हैं मगर बच्चों का कहना है कि ये तो हमें ही घुमा डालेगा। यह है सुपर हाईवे पर मौजूद एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, जहां 2.5 लाख से ज्यादा जानवर फरोख्त के लिए पहुंचाए गए हैं, जबकि अब भी 4 लाख जानवरों की आमद मुतवक्को है। कहीं साहिवाल और रहीम यार खां के खूबसूरत जानवर हैं तो कहीं रॉकेट जैसे मारधाड़ से भरपूर आसमान से बातें करती कीमतों के बायस एक खूबसूरत जानवर का नाम रॉकेट रख दिया। एक दफा रॉकेट खुल जाए तो फिर सबकी दौड़े लग जाती हैं। ये रॉकेट है, बगैर पेट्रोल वाला रॉकेट है। शहर कायद में जारी गर्मी की लहर ने भी शहरियों को मंडी से दूर कर रखा है, मगर जैसे जैसे ईद कुर्बान के दिन करीब आएंगे शहरियों की बड़ी तादाद मंडी का रुख करेगी और बच्चे कुर्बानी के जानवर गली मोहल्लों में घुमाते नजर आएंगे। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा, महमूद रियाज, सिटी 21। गुलबर्ग में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के तहत समर स्टैम्प फ्री क्रिकेट कैंप के लिए ट्रायल्स का इनेकाद हुआ। शहर भर से 800 नौजवानों ने ट्रायल्स में हिस्सा लिया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल जी। जावेद बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ टीएमसी ग्राउंड गुलबर्ग में, जहाँ पर आज एक बहुत बड़े ट्रायल्स का इनेकाद किया गया है शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की जानिब से और बड़ी तादाद में तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 800 बच्चे अब तक आ चुके हैं इस ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए। अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 19 के ट्रायल्स ले जा रहे हैं। हमारे साथ जैसे शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के डायरेक्टर ऑपरेशन अब्दुल कादिर मौजूद, हमसे बात करेंगे, तफसीलात जानेंगे। अब्दुल कादिर भाई, क्या है, किस तरह से इतने सारे बच्चों को ट्रायल्स कैसे मैनेज किया जा रहा है? फिर अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई, एक्चुअली आइडिया ये था शाहिद का कि यार हम एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दें, समर कैंप के साथ स्टार्ट करें और वहाँ से टैलेंट हंट करें। इनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है, लाइफ स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है। ये यूनिक एक समर कैंप हमने लगाया है जिसमें हमने हर चीज़ का ख्याल रखा है। एक्सपर्ट कोचेज़ हमने हायर किए हैं ताकि उनकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग स्किल्स, विकेट कीपिंग की स्किल्स को हम इन्हेंस कर सकें और वो बच्चे आगे पाकिस्तान को सर्व कर सकें। तो पाकिस्तान की खिदमत के लिए शाहिद हमेशा तैयार रहते हैं और शाहिद का आइडिया ये कि खेल के मैदान में, क्योंकि शाहिद ने सारी ज़िंदगी खेल के मैदान में दी और ये शाहिद का होम ग्राउंड है, इसीलिए इस ग्राउंड पे हमने जो है वो ट्रायल अरेंज किए कि शाहिद ने अपनी इनिशियल सारी क्लब क्रिकेट इसी ग्राउंड पे खेली है। तो हमने 3 सेगमेंट रखे हैं, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 19। उसको हमने किया ये कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है उसमें से हम 200 बच्चों को पिक करेंगे। 200 बच्चे पिक करने के बाद उनकी के ऊपर हम 1 महीने का कैंप हम लगाएंगे। हमारा कैंप चलेगा वीक में 4 डेज़ का, सुबह 9 से 12 चलेगा, मंडे टू थर्सडे। तो उसमें एक्सपर्ट कोचेज़, इंटरनेशनल हमारे प्लेयर्स जितने भी हैं वो आएंगे, शायद ख़ुद भी आएंगे, गाय बगाए आते रहेंगे और बच्चों को काम करते हैं। हमने प्रॉपर टाइम दिया है, प्रॉपर एक सिलेक्शन कमेटी हमारी है जिसको हेड कर रहे हैं फर्स्ट क्लास प्लेयर्स
ظفر احمد صاحب بہت سینئر ہمارے فرسٹ کلاس پلیئر ہیں اور ان کے انڈر میں ہمارے پاس 5 سلیکشن کمیٹی کے رکن ہیں. اس کے ساتھ ہمارے جو پینل کے کوچز ہیں وہ ہیں. ہم نے ہر بچے کو پراپر ٹائم دیا ہے, اس کی اسکلز دیکھی, بالنگ, بیٹنگ, فیلڈنگ کی تمام اسکلز ہم نوٹ کر رہے ہیں اس کی. سنا آپ نے عبد القادر بتا رہے تھے کہ کوشش ہے ہر بچے کو پورا دیکھا جائے اور اس کے لیے اس کو موقع دیا رہا ہے کہ اس کے جو ٹیلنٹ ہے بھلے بیٹنگ ہو, بالنگ ہو, فیلڈنگ ہو, وکٹ کیپنگ ہو, تاکہ کوئی بچہ یہاں سے مایوس نہ جائے, اسے اپنی صلاحیتیں دکھانے کا. ٹھیک ہے جاوید, آپ کا بہت شکریہ. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے نیشنل اسٹیڈیم میں 70 کمروں پر مشتمل ہوٹل بنانے کی نوید سنا دی ہے. تفصیلات کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں محمود ریاض. جی محمود بتائے گا. رمیز راجہ نے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بہت بتایا کہ پاکستان کے اندر جونیئر لیگ جو ہے وہ PSL کی طرز کی شروع کی جائے گی اور اس کے لیے بہت ساری ٹیموں کو جو ہے خریدنے کے لیے کمپنیوں نے جو ہے وہ دلچسپی کا اظہار کیا. دوسری طرف ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں جو نئی پچز کا اسکوائر بنا ہے اس کے لیے 15 جولائی تک جو ہے وہ آسٹریلوی مٹی آ جائے گی, جس کے بعد یہ 13 پچوں پر مشتمل جو اسکوائر ہے یہ بین الاقوامی معیار کا ہو جائے گا. اس کے علاوہ ان کی ایک اچھی خبر تھی کہ PSL کے دوران جو سیکیورٹی پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں تو 70 کمروں کا ایک ہوٹل کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں بنایا جائے گا, جس کے بعد ٹیموں کو وہیں پر ٹھہرایا جائے گا اور اس سے کافی خرچہ بھی بچے گا. اس کے علاوہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ایک کلب ہاؤس بھی بنایا جائے گا اسکور بورڈ کے پیچھے. تو یقیناً ان کا یہی کہنا تھا. آج انہوں نے اینگروں کے ساتھ بات پھر پروگرام بھی اس کے اوپر باہمی مفاہمت کی یادداشت پہ سائن کیا, جس میں 100 کرکٹرز کو لے کر 3 سال تک ان کو ٹرین کیا جائے گا, ان کو پڑھایا بھی جائے گا, ان کو 30,000 روپے ماہانہ بھی دیا جائے گا اعزازیہ. اس کے علاوہ ان کی تمام کرکٹ کی جو کوچنگ ہے وہ بالکل کم عمر سے کی جائے گی تاکہ پاکستان کو آنے والے وقتوں میں بہت اچھے کھلاڑی مل سکے. دوسری طرف ان کو کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کا جو جیت کا ریشو ہے جو 75% ہے جو دنیا میں بہت زیادہ ہے. تو یقیناً آج PCB کے چیئرمین ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ جس قسم کی سیاسی کیفیت ہے کہ آپ جا رہے ہیں, تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر میں چھوڑ کر گیا تو میں دوبارہ کمنٹری باکس میں نظر آؤں گا. لیکن ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے جس قسم کے اقدامات لیے ہیں تو اب کمنٹری کرنا بھی ان کا مشکل ہو جائے. تو یقیناً PCB کے چیئرمین نے پاکستان میں کرکٹ کے لیے بڑے پلان بتائے ہیں, اب ان کو ایگزیکیوٹ ہونا ہے, جس کے بعد پاکستان ٹھیک ہے محمود, آپ کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت